छोटी किधर गए? छोटी ओ सो रही है। ओके स्टार्ट करो। जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં લાગુ છે, ભક્તિ રસમાં લાગુ છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલી, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યો વકાર, જીવન મારું બન્યો વકાર, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દર્વ વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. વેરી ગુડ. શ્રેયા. Okay. Column 1, Khushi number 2. नहीं सुनाई देता श्रेया. सुनाई दे रहा है? ओके हाँ बोलो बोलो. हाँ जय सचिन.
हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવ્યું સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે ન દુભાય કે દુભવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી દાદા હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ ન દુભે ન દુભાય કે દુભવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ ધર્મ ન દુભાય. Okay, Shreya, you continue. કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે Continue. દાદા હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાવે કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંતીની ભાષા ના બોલી જાય ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા બોલી તો મને મૃદુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધિત કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં વૃદ્ધપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવજી અનમ્યુટ કરજે. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાય પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય નમો નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વસુદાય નમો લોએ સવ સાહુણમ નમો લોએ સાહુનમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચમુક્કારો सव पावपणासनो સવપાવક मंगलाणम च सव्वेसिम મંગલાનમ परमं हवै मंगलम પરમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ. श्रेया. सच्चिदानंद भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि
कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर के साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निश्चय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे पर शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हम में हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के दिल हैं के सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर 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 भी भी है है हैं कच्चे। सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। दादा शक्ति दो। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્चिदानंद। ओके श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાन, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। જય यशवंत जी તમારી મ્યુઝિક ચાલે છે। ओके ओके कैसा रिपोर्ट कैसा रहा श्रेया? और रिपोर्ट में मुझको और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। किसमें? को रिपोर्ट में ब्रशिंग, मम्मी की हेल्प और दूसरे फैमिली मेंबर को अप्रिशिएट करने में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं ब्रशिंग में क्या प्रॉब्लम है? मैं रात को भूल जाती हूँ। वो तो बिगेस्ट कल्प्रिट। मम्मी याद नहीं आज करती है? नहीं, मतलब आज मैं भूल गई ना, तो फिर मैं कर लेती हूँ। ओके ओके। खुशी। मुझे आज सत्साधन में और खेलने में डी है। सत्साधन और सत्साधन मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी दादा ना सिंह जी का है, रह गया है। रात को सोने से पहले कर दूंगी। ओके तो डी नहीं लिखने का है। वो दूसरा किस में था? खेलने में। ओके खेलना नहीं। अब कुछ खेलते हैं? नहीं। कुछ ही नहीं खेला तो ये लिख के आओ ना ड्रॉप। हाँ मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज सत्साधन बाकी रह गया और मम्मी को मैंने सिर्फ 20 मिनट्स हेल्प किया था और खेलती मैं नहीं हूँ तो उसमें डी है। मम्मी को क्या हुआ? मैंने मम्मी को 30 मिनट्स हेल्प नहीं किया था, तो डी इसमें कैसे आ गया? सिर्फ 20 मिनट्स।
Anything you help mommy is good enough. Okay. Okay. So उसमें तो A okay. और दूसरा सच साधन वो है तो आपको निकाल देने का, आपको इम्पोर्टेंट नहीं है सत्संग। कल से आपको स्केड्यूल नहीं है सत्संग का? ताजा मैं करने बैठती हूँ तो मैं सो जाती हूँ या फिर मन जोर से बोलने का होता है ना ये। जब भी कैसे? मैं सच साधन करती हूँ तो मुझे नींद आती है और मेरा वही मैं मन बोलता हूँ कि जोर से बोलने का तो नींद नहीं आएगी। हाँ और साथ में नहीं बोल सकता है तीनों? जोर से बोल बोल सकते सकती साथ हूँ में तो कोई नहीं सोएगा। हाँ ओके, रिपोर्ट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो उसमें तो बहुत डिस्कशन करने का नहीं है। अभी होमवर्क किसने किया थर्ड कॉलम के लिए? किसी ने भेजा नहीं हमको। ओके, क्या बोला था महेश? केशव दादा, अभी हम कॉलम नंबर 3 पे क्या मिस्टेक्स हम पकड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉलम 3? ओके, तोरल तोरल। ओके, तो किसी को याद है कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं? ओ इताक्षी आ गई। ओके खुशी। हम थर्ड कॉलम में मानव धर्म नहीं निभाते हैं। मानव धर्म में हमें दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की हेल्प करना नहीं और नहीं, उनको थर्ड कॉलम की बात। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ अपराध अविनय न करવાની परम शक्ति आप। उसमें ताकि महेश दादा ने ये बताया था कि हम हमारे गुरु जो हमारे बड़े होते हैं उनको हम रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो हमने थर्ड कलम ब्रेक किया और उनके प्रति अभाव करना। और आपका गुरु कौन कौन होता है? सब मम्मी पापा दीदी टीचर्स। और करिश्मा नहीं होती है? हाँ वो भी है। तो एवरीबॉडी इज अपना गुरु। वो देखने, वो कभी भूलने का नहीं है। वो सब उससे से उपदेश मिलता है। ओके, दूसरा मोनिका। थर्ड कलम के बारे में बताना। मिस्टेक कैसे मिलते हैं उसमें थर्ड कॉलम में? अगर तुम लोग चलो अभी हम बोलेंगे, वो महेश दादा ने क्या बोला था कि टीचर पेरेंट्स फ्रेंड्स एडल्ट्स जो कोई एडवाइस देता है वो सब उपदेशक में आ जाता है। रिस्पेक्ट, नो बैड वर्ड्स, नॉट लिसनिंग, પછી अवर्णवाद अपराध अविनय, उसका क्या मीनिंग होता है? विनय का मतलब डिसरेस्पेक्ट और अवर्णवाद जो अपनी मर्जी से करते हैं, अलग क्या सा रहते हैं। अवर्णवाद क्या अपनी होता अपनी मर्जी पे रहते हैं, अलग से। है? नो, अवर्णवाद का वो नहीं है। वर्णवाद इज डिस्क्रिप्शन। अ मीन नो, बैड डिस्क्रिप्शन। किसी अलग के सा नाम। अवर्णवाद किसी को बोला जो इंसल्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं किसी के लिए कि उसने वो किया नहीं किया होगा। इताक्षी बा, अवर्णवाद का मीनिंग क्या है? अनम्यूट करो। ये तोरल अवर्णवाद का मालूम है? अपराध अविनय। अपराध किसको बोलता है, विनय किसको बोलता है? ओके, अनम्यूट करो इताक्षी बा।
साउंड नहीं आता है। ओके, अपराध में क्या होता है? नॉट लिसनिंग, विनय नहीं करता है, ओके, आलस, लेजीनेस, वो अविनय में अपराध में आता है। ओके, यशोदा दादा अभी थोड़ा एक्सप्लेन करो, अवर्णवाद का एग्जांपल दो, अपराध का, अविनय का। अभी ये बहुत बड़ी चीज है कि नॉर्मली हमारे जैसे गुरुजन होते हैं, टीचर्स होते हैं, या जो भी हमसे बड़े हैं, जो हमको शिक्षा देते हैं, इवन जो हमको गाइड करते हैं, वो सब हमारे गुरु कहलाते हैं। मम्मी पापा हमारे गुरु कहलाते हैं। तो इन सब के साथ अवर्णवाद मतलब उनके साथ जो गलत बात हो करने का, उनका बात नहीं मानने का, उनके साथ डिस्कशन करने का, उनकी बात को आर्ग्यूमेंट करने का, वो उनके साथ वाद विवाद करने का, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। मम्मी बोले कि अभी अगर अभी सोने का टाइम हो गया तो सो जाने का, मम्मी बोले अभी पढ़ने का टाइम है, अभी बार बार तुम आखा दिन खेलते रहते हो, तो अभी सीरियस हो जाओ, तो उनके साथ उनका कहना मानने का, वो सब अवर्णवाद में आता है। क्योंकि जब हम उनकी बात नहीं सुनते और फिर उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते, विवाद करते हैं, तो वो अवर्णवाद करता है। उनका नहीं मानना वो अवर्णवाद होता है। तो हम पूरे दिन दरमियान हमको ऑब्जर्व करने का, ये हम दादा से क्यों ये 9 कलम कहलाते हैं, करवाते हैं, दिन में 3-3 बार क्यों करवाते हैं, ताकि हमसे पूरे दिन दरमियान जो जो भी मिस्टेक्स होती हो उसका एक प्रकार का माफी नामा है, एक प्रकार का प्रतिक्रमण है। तो हमको वो जब भी 9 कलम का जो भी हमारा वो कलम करते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा डेप्थ है, बहुत बड़ी समझ है कि हमारे जितने भी गुरुजन है, साधु साध्वी आचार्य, उसमें सब आ गए। आचार्य यानी हमारे दादा भगवान, जो हमारे बड़े हैं, जो हमको शिक्षा देते हैं, जो माँ बाप है, ये सब हमारे से जो पूजनीय है, उन सब के साथ ये 3 चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अपराध हो जाए, अपराध यानी कोई बोले कि भैया झूठ बोल दिया उनके साथ, मम्मी पापा के साथ, गुरुजनों के बाद, गुरु बोले कि आज तुम सत्संग में क्यों नहीं आए, या आज तुमने सत्साधन क्यों नहीं किया, तो वो मैं तो आज बहुत दिन पढ़ाई कर रही थी, आज मेरे को ऐसा बहुत, मैं मम्मी को हेल्प कर रही थी, तो वो क्या करते हैं, हम अपनी सच्चाई को खुला नहीं करते, उल्टा हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो बहुत बड़ा अपराध है, झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। जो सच्ची चीज है वो आप बताते नहीं है, तो उससे क्या होता है, वो अपराध करने से वो अपराध और बढ़ता जाता है। वो हमारे घर में हम उसको, अगर उस अपराध को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम उसको अपने घर में और खाना खिलाते हैं और मजबूत करते हैं, तो वो हमारे एक जगह की बजाय 10 अपराध होने लगेंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए जो भी हो खुला करने का, मेरे से नहीं हुआ, मेरे को सुस्ती हो गई, और मैं अभी पक्का निश्चय करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, ताकि अभी मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, तो उसमें से क्या होगा, आपकी प्रगति होगी। तो ऐसे टाइप के बहुत अपराध हो जाते हैं, जाने अनजाने में हम झूठ बोल देते हैं, जाने अनजाने में किसी को दुख दे देते हैं, तो वो ऐसे कई टाइप के अपराध हो जाते हैं। हमारे टीचर्स हैं, उसको टीचर्स के बारे में हम उनको चिढ़ाते हैं, टीचर्स के ऊपर हंसी मजाक करते हैं, तो ये अपराध है। क्योंकि जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे को ज्ञान देते हैं, जो हमको समझ देते हैं, तो उसके लिए हमारा बहुत बड़ा भाव होना चाहिए, उनके लिए बहुत सम्मान होना चाहिए, उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसी चीजें में वो अपराध में चली जाती है। ख्याल आया? और विनय, विनय मतलब कैसा होना चाहिए? अविनय कभी नहीं होना चाहिए। हमारे बड़े बैठे हो तो उस समय उनको बहुत बड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर कोई मम्मी पापा आए हो और हम सीट पे बैठे हो, तो जैसे ही वो आए तो उनको सीट में बैठने की जगह देनी चाहिए, हमारे गुरुजनों को। कोई जैसे हम बस में खड़े रहते या किधर है, तो हमारे बुजुर्ग हो या बड़े हो या गुरुजन हो, तो वो खड़े हो और हम बैठे हो, तो उस समय हमारा वो विनय खलास हो जाता है। विनय कैसा होना चाहिए, वो सामने आते हैं तो ऑन द स्पॉट उनको पहले रिस्पेक्ट देके उनको पहले जगह देनी चाहिए, विनय।
उनके साथ बातचीत करने की जो बात आती है तो उसमें भी विनय आता है। कैसे उनके साथ डिस्कशन करना जी, किस तरह से जो हमारे गुरु हैं, मम्मी पापा हैं और जो हमारे बड़े वडील हैं, उनके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, वो उसमें भी विनय होता है। कैसे बैठना चाहिए, कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो सब विनय में जाता है। तो नॉर्मली क्यों हमारे से ये ऐसी कलम क्यों रखी है दादा ने, तीसरी कलम, कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, बड़े हैं, गुरुजन हैं, मदर फादर है, उनको उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए वही हमको नहीं पता चलता है। इसलिए बार बार हम दादा से शक्ति मांगते हैं कि भाई हमारे से कोई भी अपराध, अविनय, अवर्णवाद ये सब नहीं हो। ऐसी हे दादा भगवान आप हमको बहुत शक्ति दो और हम इस तरह से बिहेव करें ताकि हमारे घर में जो भी हमारे बड़े हैं, जो हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, सब लोग हैं, जिनके साथ भी हमारा उठना बैठना है, जिनके साथ भी हमारा व्यवहार है, उनके साथ हमारा बहुत ही सुंदर व्यवहार हो, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से हम विनय में रहें, उनको रिस्पेक्ट दें। तभी हमारे अंदर जो जागृति है, जो हमारी डेवलपमेंट है, तभी वो बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम, ये बहुत बड़ा संस्कार है हमारे पास हिंदू धर्म में, हमारे जो जो बड़े हैं, जो हमारे माँ, वो हमको बचपन से क्यों ऐसे संस्कार देते हैं, ताकि आप बड़े चल के, आगे चल के यही संस्कार दूसरों को आप दे सको, आप अपने बच्चों को दे सको, अपने पड़ोसी, अपने भाई बहन सिस्टर सबको दे सको। इसलिए ये दादा ने बहुत अच्छा कलम बनाया है। ख्याल आ गया? ओके, इजाक साहब आपको क्या बोलने चाहते थे? आप क्या, अवर्णवाद, अपराध, अपराध का मीनिंग क्या होता है मालूम है आपको? हाँ, हाँ बोलिए। अवणवाद यानी कि हम अपनी वाणी से किसी भी टीचर हो, कोई भी गुरु हो, उनके प्रति हम कुछ भी बुरा बोलते हैं। जैसे कि हम कभी ऐसा बोलते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, वो टीचर अच्छे नहीं है। अपराध यानी कि हम अपने खुद से कुछ मिस्टेक कर देते हैं। और अवनी यानी कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं टीचर को। अविनय? डिसरिस्पेक्ट करते हैं टीचर को और टीचर की बात नहीं सुनते। वो मम्मी को नाम बोलती थी, वो अविनय नहीं है? हाँ, मम्मी को ना बोले थे तो अविनय नहीं है वो? हाँ। ओके, तो अभी किस एग्जाम्पल दो, किधर आप गलती करते हैं आप लोग? मोनिका, वैसे तो स्कूल में मोनिका, अवर्णवाद आप किसको कब यूज करते हैं? not telling the truth. मोनिका, श्रेया, आप अवर्णवाद किधर करते हैं? not telling the truth. मैं अवर्णवाद नहीं करती हूँ। मेरे से एक बार हो गया था मेरे फ्रेंड के साथ, पर फिर मैंने उसका प्रतिक्रमण कर लिया। ओके, एक दफा तो that's not counted. Very good. इताक्षिबा? हाँ, वैसे अवर्णवाद तो स्कूल में फ्रेंड्स के साथ नहीं होता, लेकिन एक साइंस के सर है, उनके प्रति मन में अवर्णवाद हो जाता है। ये सर अच्छा नहीं पढ़ा तो क्यों बार बार आ जाते हैं। और फिर मम्मी क्या उसका आप बोलिए बोलिए। फिर ऐसा विचार आते सर के प्रति, ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, फिर अब प्रतिक्रमण भी कर लेती है। वेरी गुड। मम्मी पापा कैसे क्या छुपाते हैं आप? मैं नहीं छुपाती मम्मी से। वेरी गुड।
पप्पा से? पापा से नहीं, कभी कभार। मोनिका, हाँ। आप क्या छुपा है पेरेंट्स से? पापा से नहीं छुपाती। क्या छुपाते हैं? पापा से नहीं छुपाती, और मम्मी जब पूछते तो बोलती हूँ। पूछते हो बोलते हो, छुपाने का नहीं होता है। जो छुपाने का है को नहीं बोलते, वो छुपाने का होता है। मम्मी के साथ स्कूल में इतना होता है, वो बात कौन नहीं करती। कौन सा गलती करते हैं आप, वो मम्मी पापा को नहीं बताते? पापा को बताती हूँ। मम्मी को? नहीं। क्यों? मैं- श्रेया? पापा से कभी कभार, मम्मी से नहीं। पप्पा तो तेरा फेवरेट है, क्या उससे छुपाने का होता है? केशव दादा, आप हाँ जी। आप पप्पा तो बहुत स्ट्रिक्ट था, आप क्या छुपाते थे पप्पा से? नहीं, वो हम जब समझ नहीं थी, जब तक हमको दादाजी नहीं मिले थे, तब तक तो थोड़ा ऐसा रहता था। पर जैसे ही हमको दादा की ये सब बातें पता चली, और दादा की सब नवकर्मों के बारे में पता चला, दादा की साइंस के बारे में पता चला, फिर तो बहुत हम अलर्ट हो गए। फिर तो एक बार दादा ने ये खुला किया कि भाई ऐसे ऐसे करने से क्या फल मिलता है, इसके करने से हमारी डेवलपमेंट कितनी डाउन हो जाती है। अगर हम मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व गायब हो जाता है, हमारा हमारा जीवन पलट जाता है। क्योंकि क्या है, हम जिस समय झूठ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम अंदर बैठे हुए सब दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। और वो सब दुश्मन बहुत मजबूत हो जाएंगे तो हमारा घर खाली करेंगे नहीं, और घर खाली नहीं करेंगे तो वो हमारे घर में और बड़े होते जाएंगे, और जितना हम उनको खुराक देंगे और तगड़े होते जाएंगे। तो फिर हमारे हमारे पास क्या हालत होगी कि हम धीरे 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 बहुत वीक हो जाएंगे। और फिर वो पूरा जो ज्ञान की समझ है, वो सब उसके ऊपर आवरण आ जाएगा। आवरण आ जाएगा तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, और कुछ दिखाई नहीं देगा तो हमारे सामने अंधकार होता जाएगा। तो अभी इतनी मेहनत करके हमारे अंदर इतना बड़ा प्रकाश हुआ है, ये ज्ञान का प्रकाश है, ये ज्ञान की समझ है, जो आप सब लोग अभी बात करते हैं, या ये हमारा जो घर में व्यवहार अच्छा होने लगा है, हम पेरेंट्स के साथ इतना खुल के बात करते हैं। अगर सब अच्छा होता जा रहा है तो फिर ये जो छोटी छोटी वीकनेस है, उसको हम सपोर्ट देंगे, और उसको हम उसको हिम्मत देंगे, तो वो हमारे अंदर घर करते जाएंगे, और घर करते जाएंगे, वो हमारे घर में से निकलेंगे नहीं तो हमको बहुत तकलीफ होगी। इनको निकालने में दम निकल जाएगा। एक बार अगर हमने उसका वो सपोर्ट किया, उसका उपराना लिया, तो वो हमारे घर में 2-2 3-3 साल तक घर में से ये दुश्मन नहीं जाएंगे। तो हमारी कैसी हालत होगी आप समझ सकते हो। इसलिए जैसे ही हो तो हमारे मम्मी पापा के सामने हर 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 खुला कर देना चाहिए, हमारे बड़ों के सामने, हमारे गुरुजनों के सामने, जो हमारे हमारे वेल विशर्स है उनके सामने हमारी जो भी वीकनेस है वो खुली करनी चाहिए। वो खुली करने से क्या होता है, वो धीरे धीरे वीकनेसेस सब गुम होती जाएंगी। अगर हम उसको खुला नहीं करेंगे तो हमारे घर में वो प्रोटेक्ट करके बैठ जाएंगे, पर खुला करेंगे तो हमारे मन को पता चलेगा, ये तो बार बार खुला कर देते। खुला कर देने से उनको पता चलता है कि ये तो हमारे को कभी भी किधर किसी के भी सामने हमारा इंसल्ट हो करवा देता है हमारा मन। तो फिर वो धीरे धीरे हमारे मन में से, हमारा मन में से जो भी ये वीकनेसेस हैं वो सब गायब हो जाएंगे। खुला करने से जो भी हमारी वीकनेसेस है वो सब गायब होती जाएंगी, पर उसको अगर हम सपोर्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो बढ़ती जाएंगी, और एक दिन तो हमारी हालत खराब कर देंगे। इसलिए जो भी हो, मम्मी पापा के सामने तो खुला करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच बोलने से क्या होगा, आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और आपके घर में से जो भी वीकनेसेस है, आपके अंदर में जो भी गलतियां है, वो सब उनका निवारण होता जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा। और प्रोटेक्ट करेंगे
उसको सपोर्ट करेंगे, खुला नहीं करेंगे, तो वो जो जो भी तुम्हारी वीकनेसेस है और बढ़ती जाएंगी, उसका एंड नहीं होगा। ख्याल आ गया? हाँ। ओके, कल आपने इंटेंट की बात किया था, तो आज आज अपना इंटेंट लेजीनेस में कब था? मोनिका, जब पढ़ाई करते समय लेजीनेस था, और मम्मी ने मम्मी ने जब काम दिया था, काम करते वक्त बहुत लेजीनेस था। श्रेया, जब मम्मी ने काम दिया था तब मुझको लेजीनेस और मैथ्स करने के वक्त मुझको रिताक्षिबा, हाँ, मैं तब लेजीनेस आ गई थी। आज तो सब डी है आपको, क्यों डी है आप सब? इन रिपोर्ट में नहीं सुनाई देता है, मम्मी आप को आपका नहीं नहीं ब्रेक होता है। दादा सुना दिया। आप बोलो। पहले मेरा डी था, लेकिन फिर मैंने मम्मी को भी हेल्प करवाई थी। मम्मी नहीं सुनाई देता है, राइट? ओके, तो अभी 2 मिनट बाकी है, तो कैसे दादा, ये हाँ इन लेजीनेस और इंटेंट का थोड़ी बातें करो, 2 मिनट। हाँ। अभी लेजीनेस तो कैसी है कि वो लेजीनेस अगर एक बार अंदर घुस जाती है ना, तो फिर मन क्या है, मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। अभी जैसे सुबह उठने का टाइम है, और उठते समय हमको सब ये सत्साधन करना है, और पढ़ाई भी करना है, सब कुछ टाइम सर टाइम टेबल मुजब करना है। तो उस समय मन क्या बोलता है कि चलो छोड़ो ना, थोड़ी देर के बाद करता हूँ, या थोड़ी देर के बाद करती हूँ, फिर बाद में पढ़ाई करती हूँ, या बाद में उठ के फिर सत्साधन करूंगी। ऐसा करते करते क्या हो जाता है कि वो लेजीनेस में वो सब चीज रह जाती है और वो मिस हो जाती है। तो दादा क्या बोलते हैं कि मन में जैसे ऐसे ऐसा मन में विचार भी आए कि भाई चल थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो बोलने का बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक बार मन के हिसाब से चलने शुरू किया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, फिर मन क्या लपटा पड़ जाएगा। मन मतलब क्या है, वो एकदम लूज बन जाएंगे हम, मन के हिसाब से चलने लगेंगे, और हमारे में मन के हिसाब से चलना शुरू किया तो हमारा जो अंदर की जो डेवलपमेंट है वो सब बंद हो जाएगी। हमारे अंदर जो लेजीनेस है वो हमारे टाइम टेबल को और शेड्यूल को सब हेवाय कर डालेगी, और सब उसको उसका हमारा जो जो हमारे नियम है उसको सबको तोड़ डालेगी। तो हम इतनी सब मेहनत करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, उतना इतनी समझ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लेजीनेस की वजह से क्या होता है कि हम फिर पूरा दिन पीछे रह जाते हैं। तो हमारी जो रोज की मेहनत है वो सब पानी हो जाती है। मन तो कुछ भी बोलेगा, मन तो बोलेगा कि अभी सोने जैसा है, मन तो बोलेगा आज बहुत काम किया, मन तो बोलेगा रोज रोज कितना बार सत्साधन करने का, मन तो कुछ भी बोलेगा। पर हमको मन के अगेंस्ट जाके हमारे जो नियम है, जो हमारे रूल्स हैं, वो जो हमारे सिस्टम है, जो हमारे संस्कार हैं, उसको फॉलो करना है। क्योंकि मन तो हमेशा कुछ भी दिखाएगा। मन के हिसाब से चलेंगे तो वो हमारा पूरी पूरी जो डेवलपमेंट है खलास हो जाएगी। तो मन के हिसाब से ऊंधा करने का, मन जो बोले उसका ऊंधा करने का। मन बोले आराम करो तो बोला नहीं करने का है, मन बोले सो जाओ तो नहीं सोने का है। क्योंकि पूरी रात हमने पूरी आराम से सोए हैं, हमने इनफ टाइम नींद किया है, और उसके बाद जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे हमारे नियम है, उनके ऊपर हमको सिंसियर रहना है। और जितनी हमारी सिंसियरिटी रहेगी हमारे उसूलों के ऊपर, हमारे आदर्श के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारे निश्चय के ऊपर, जो हमको दादा भगवान ने दिया है, जो समझ दी है, उतना जितना भी हम उनके ऊपर सिंसियर रहेंगे तो हमारी प्रगति होगी, हमारी जागृति बढ़ेगी, और हमको खुद ही अपने जीवन में से हमको खुशी मिलेगी।
बाकी जब तक हम बार बार बोलते रहेंगे कि ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, आज नहीं किया, तो ये सब सुस्ती के कारण है और आपकी प्रगति नहीं होएगी। जब तक हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, अपना पुरुषार्थ नहीं करते, जैसे हम बोलते हैं सिंह का संतान, उस सिंह के संतान को क्या नींद आती है? सिंह के संतान क्या ऐसे लेजी होके बैठे रहते हैं? शेर को देखा है, सिंह मतलब कैसा, ऑल द टाइम अलर्ट रहता है, आंखों चारों तरफ से उसकी आंखें देखती रहती है कि मेरा शिकार किधर है। एक सेकंड के लिए भी वो गाफिल नहीं रहता है। हमको ऐसे शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह रहना है अपने जीवन में। नहीं तो वीकनेस में, और वीकली लोग तो सब ऐसे ही जीवन गुजार लेते हैं, पर हमारा जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी जीवन नहीं है हमारा। क्योंकि जिसको ये समझ मिली है, दादा की समझ मिली है, ये इतने बड़े संस्कार मिल रहे हैं, उनकी उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये। उनके लिए तो नींद हराम है, आलस हराम है। ख्याल आ गया? ठीक है, हाँ, आपको तो आलस नहीं है ना श्रेया? नहीं है। किसमें है? हाँ, कभी कभार पढ़ाई में और जब मम्मी काम देते तो। कभी कभी नहीं हो तो दैट इज ना, और कभी कभी तो सबका होता है, ये कभी कभी कोई एक दो का काम होता है ना, देन यू आर इन ट्रबल। केशव दादा ने बोला ना, देखो उठने का, देखो नहीं उठते उठते तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। यू नो, स्टडी है टाइम से नहीं करने का वो प्रॉब्लम। ओके, यू आर अ गुड गर्ल एनीवे, वी नो दैट। मम्मी को बहुत बोलना, अच्छा। दादा बोलते थे यू आर अ गुड गर्ल। ये केशव दादा, हाँ श्रेया को हंसने का क्या करेगा, हंस नहीं पाती है। हाँ, ऐसा बोलने का तो हंसेगी, अभी हंसी नहीं, ने। हमने बोला कि वो मम्मी को बोलने कि शी इज गुड गर्ल, तो शी शुड बी लाफिंग ना। अभी देखो, अभी देखो। हाँ, हाँ? नहीं, क्या करने का, श्रेया को आईने के सामने लेके जाने का, और ऐसा ऐसा कंधे पे हाथ रख के बोलने का, श्रेया वेल डन, यू आर अ वेरी गुड गर्ल, आपने बहुत अच्छा काम किया। और कभी कभी एक आध बार वीकनेस या गलती हो जाती है, उसके लिए दादा से माफी मांग लेने का। पर 90%, 99% आप अच्छी है श्रेया, यू आर अ वेरी गुड गर्ल, ऐसा करके फिर हंसने का आईने के सामने, जोर से हंसने का, हा, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। मम्मी मम्मी दौड़ के आएगी, क्या हो गया? हम्म, नबी को बोलने का कि मेरे को हंसी आ रही है तो मैं क्या करूं। ओके, हाँ, सी ऐसा, श्रेया ऐसा स्माइल होना मांगता है, यू नो। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।